جنگل دور ہوتا جا رہا ہے، اس لیے لکڑیاں اکٹھی کرنے کا عمل پہلے سے زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہم جنگل کو تیزی سے ختم کرتے جا رہے ہیں، جو کہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ ہم جنگل کی قدر نہیں کر رہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اہم اور ختم ہونے والی نسل کے جانوروں کے ماحول کی بھی قدر نہیں کر رہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ مقامی آبادی کا جنگل بھی ہے اور اس بات میں کوئی شک بھی نہیں، لیکن ان سب سے بڑا مسئلہ تجاوزات اور لکڑی مافیا ہے۔ لکڑی مافیا مقامی آبادی کے مقابلے میں جنگل کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے۔ زیادہ مالی وسائل کی وجہ سے یہ مافیا مقامی آبادی کی نسبت زیادہ تیزی اور صفائی سے جنگل کو کاٹ رہا ہے۔ جنگل کی کٹائی کی وجہ سے یہاں کی قدرتی حیات تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مقامی لوگوں کے استعمال کے وہ وسائل بھی ختم ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے ان کا گزارا ہوتا ہے۔ جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے جھاڑیاں اور پودے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے زمین بنجر ہو رہی ہے۔ پاکستان اس معاملے میں تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ یہ دنیا کے ان ملکوں میں سے ایک ہے جہاں درختوں کی کٹائی کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ جنگلات کی بہت اہمیت ہے، جس کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے نہ جانور۔ ایریاز کے اندر اگر ڈیفارسٹیشن ہو اور جنگل بھی کٹ رہا ہو تو وہ زمین زیادہ اوپن ہو جاتی ہے بارش کے پانی کے لیے، اور جس کی وجہ سے یہ زیادہ تیزی سے بہنے لگ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہاں پہ یا ایسے علاقوں کے اندر مقامی آبادی کے لیے سب سے بڑی مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ان کی جو زمینیں ہوتی ہیں وہ گھر رہی ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو نالے ہوتے ہیں وہ زیادہ بڑی شکل اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ درختوں کی جڑیں چٹانوں اور زمین کو مضبوطی سے ایک ساتھ جوڑے رکھتی ہیں۔ جہاں زیادہ درخت نہیں ہوتے وہاں بارش کا پانی زمین کی زرخیز مٹی کو بہا کر لے جاتا ہے۔ اور زمین بنجر اور مردہ ہو کر پہاڑوں کے کناروں کو کمزور کر دیتی ہے۔ پہلے سے ہی مشکلوں میں گھری مقامی آبادی مویشیوں کی جگہ اور چراگاہوں سے ہاتھ دھوتی جا رہی ہے، اور عمل اور رد عمل کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ وہ کس حد تک اس نقصان کے خود ذمہ دار ہیں۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم جنگلات کو کاٹتے ہیں تو اس وقت نہ صرف خطرے سے دو چار جنگلی حیات کا نقصان ہوتا ہے بلکہ انسانوں کا بھی۔ ان برے حالات کی وجہ اور دوسرے مسائل بھی ہیں۔ یہ جگہ کبھی قدرتی جنت ہوا کرتی تھی۔ ایوبیا کا جنگل، جو جنگلی حیات کے لیے ایک محفوظ جگہ ہے، تاریخی طور پر اپنے پرسکون اور الگ تھلگ ماحول کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ چند سالوں سے اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ یہاں بڑے پیمانے پر ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور ہزاروں سیاحوں کے آنے سے یہاں مختلف قسم کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ یہاں جنگل میں ٹریفک کا شور سنائی دیتا ہے، جہاں کبھی پرندے چہچہایا کرتے تھے۔ پہلے جہاں درخت اور ندیاں تھیں، اب وہاں ہوٹل اور دکانیں ہیں۔
सयाहों की कसीर तादाद अपने साथ कूड़ा करकट भी लाती है। यहाँ रोजाना कूड़ा फेंका जाता है। इनमें ज्यादातर जमीन में हल ना होने वाली चीजें होती हैं। कूड़े को सही तरीके से ठिकाने न लगाने की वजह से माहौल खराब होकर रह गया है। लोग यहाँ पे अपना अबंडेंट जो भी सामान लेकर आते हैं उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ नहीं करते, या जो इसके अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है फैसिलिटेट तो कर दिया जाता है एक तरफ टूरिस्ट को, लेकिन इससे जो वो एरियाज थे जहाँ पे वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती थी, इसकी वजह से उन एरियाज़ में वाइल्ड लाइफ की बहुत कमी हो गई है। कूड़े करकट की वजह से जंगली हयात भी खतरे में है। वो जानवर जो कूड़े से चीजें उठाकर खाते हैं, प्लास्टिक के थैलों की वजह से उनका सांस घुट सकता है या वो खुद को टीन के खाली डब्बों से जख्मी कर सकते हैं। जहां कभी शफाफ पानी की नदियां बहती थीं, अब वहां कूड़े के ढेर हैं। इस आलूदा पानी की वजह से नीचे रहने वाली आबादियां मुतासिर हो रही हैं, जिनका दारोमदार नदी के पानी पर है। आलूदा पानी से कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं और दवाइयों के खर्चे बढ़ जाते हैं, जो कि मकामी लोगों की कुव्वत बर्दाश्त से बाहर होते हैं। जंगल की कटाई और नाकदरी, सयाहत और आलूदगी इस जगह को तबाही के करीब ले आई है। कुछ लोगों के ख्याल में ये गुलदार ही है जिसकी वजह से उन पर तमाम मुश्किलात आई हैं। हालिया सालों में इंसानों और गुलदार का टकराव हो रहा है, क्योंकि इंसानों ने अपने रहने की जगह को वसी करके जंगल के बड़े हिस्सों को तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से इंसान और जानवर एक दूसरे के करीब आ गए हैं। यहाँ हमेशा से ऐसा नहीं था। तारीख गवाह है कि सैकड़ों सालों से इन जंगलात में गुलदार रहा करते थे। कुछ मकामी लोगों की राय में जंगली हयात से मुतल्लिक इदारे गुलदार को जंगल में छोड़ने के जिम्मेदार हैं। ये जो पहाड़ी इलाके में हमारे ये दरख्त हैं, ये हमारी ज़ाती मलकियत से तल्लुक़ है। इनमें उनका शेर छोड़ने का कोई रिवाज ही नहीं। अक्सर लोगों की राय ये है कि महकमा जंगली हयात ने इस पार्क में गुलदार छोड़े हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर हम तारीख को देखें तो मुगलिया दौर में यहाँ गुलदार की मौजूदगी का जिक्र है। इसके अलावा किताबों में इस जगह गुलदार की मौजूदगी का हवाला भी दिया गया है। WWF पाकिस्तान ने मकामी आबादी के लिए एक प्रोग्राम तरतीब दिया, जिसमें इस बात की वजाहत की गई है कि जो जानवर अयूबिया नेशनल पार्क या महफूज जंगलात में चराने के लिए ले जाए जाते हैं, वो गुलदार का शिकार हो सकते हैं। भाई लोगों की जो है ना नुकसान हो रहा है, लोगों की बकरियों को जो मार रहे हैं घरों के अंदर आके, और तो जंगल है, मलकियत एरिया के अंदर आके मार रहे हैं। अगर आप अपने जानवर पार्क में चराते हैं जो कि गैर कानूनी है, तो गुलदार इनको ज़्यादा आसानी से शिकार कर सकता है। एक गुलदार जब मवेशियों को चरता देखता है तो मुमकिन है कि वो इन मवेशियों का पीछा करते हुए घरों तक आ जाए। हो सकता है वो फौरन हमला ना करे, मगर उसको एक आसान शिकार की जगह का पता चल जाता है। अपने जानवरों को महफूज रखने के लिए मकामी लोगों को कहा जाता है कि वो अपने मवेशियों को सूरज गुरूब होने से पहले मजबूत बाड़ों में बंद कर दें। जब एक गुलदार मवेशियों के पीछे आता है और अगर कोई इंसान उसके करीब हो तो गुलदार उस पर भी हमला कर सकता है। गुलदार अचानक सामने आ गया और मुझ पर हमला कर दिया।
वो बकरी को खाने आया था, मगर बकरी के बजाय मेरी अम्मी पर हमला कर दिया। इंसानों पर ज्यादातर हमले जंगल में होते हैं। इस तरह के हमले मकामी लोगों और गुलदार के दरमियान नफरत फैला रहे हैं। जंगल में शिकार ना मिलने की वजह से गुलदार मजबूरन मवेशियों का शिकार करता है, जो कि आसानी से मिल जाता है। मुतासरा लोगों के दिलों में गुलदार के लिए हमदर्दी कम है। लोग गुलदार को अपना दुश्मन समझते हुए अपने घर वालों और मवेशियों की हिफाजत करते हैं, जिसके नतीजे में चाहे गुलदार का कसूर हो या ना हो, गुलदार को मारा जा रहा है। इनकी नस्ल खत्म होने के करीब है। 1989 से लेकर अब तक यहाँ तकरीबन 45 गुलदार मुर्दा पाए गए, जिनमें अक्सर गोली के जख्मों और जहर की वजह से हलाक हुए। इस फिल्म के बनने के दौरान इतला मिली कि करीब ही एक मादा गुलदार जख्मी हालत में देखी गई है। खौफजदा गुलदार को गोली मारी गई थी और नदी में गिरने से उसकी पिछली टांगें जख्मी और मफलूज हो गई थीं। वहां मौजूद लोगों के हुजूम को उस गुलदार से कोई हमदर्दी न थी, बल्कि वो उसे अपने लिए एक खतरा समझ रहे थे। जब वाइल्ड लाइफ और WWF उस गुलदार को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वहां मौजूद मकामी लोग गुलदार के मरने का इंतजार करते रहे। नीम बेहोश गुलदार को तिब्बी इमदाद फराहम की गई, मगर वो जख्मों की ताब न लाकर मर गई। एक मादा गुलदार का मरना उसकी नस्ल की बका के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। अगर हमने गुलदार को तंग करने, तकलीफ देने और मारने का सिलसिला जारी रखा तो 20 साल बाद ये मुश्किल से नज़र आएंगे। शायद चंद ऊपर पहाड़ों में रह जाएं, और इसे अगले 20 से 30 सालों में मुमकिन है कि हमारे मुल्क में गुलदार सिरे से ही ख़त्म हो जाए। इस मसले के ऐसे हल के लिए जिससे गुलदार और मकामी लोग दोनों महफूज रह सकें, WWF और इदारा जंगली हयात खैबर पख्तूनख्वा ने इटली की सियाना यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस इलाके में तहकीक करना शुरू की है। एक तफसीली सर्वे और रिपोर्ट तैयारी के मराहिल में है, ताकि मालूम हो सके कि मवेशियों और इंसानों को किस कदर खतरा है और गुलदार को कितना कसूरवार ठहराया जा सकता है। घर घर से आदादो शुमार इकट्ठे किए जा रहे हैं, ताकि इस बात का पता चलाया जाए कि अयूबिया नेशनल पार्क में जिंदगी कैसे गुजरती है। इस सर्वे का मकसद ये है कि तमाम गांवों में जाकर मवेशियों की इकसाम और तादाद का अंदाज़ा लगाया जाए। गुलदार यकीनन खुराक के लिए गांव का रुख करता होगा, इन जानवरों को हलाक करता होगा जिनको नेशनल पार्क के महफूज जंगलात में चराने के लिए ले जाया जाता है। हो सकता है कि ये एक तनाज़ा हो, फिर भी तहकीक करने वाले उम्मीद करते हैं कि ये तनाज़ा मकामी आबादी के लिए आगही के प्रोग्राम तरतीब देकर कम किया जा सकता है। तब मकामी आबादियों को मालूम हुआ कि उनके मवेशियों के लिए सबसे बड़ा खतरा गुलदार नहीं, बल्कि मवेशियों की बीमारियां हैं। ये बात इनके लिए जानना बहुत ज़रूरी था कि इनके मवेशियों को नुकसान पहुंचाने वाला गुलदार नहीं, बल्कि बीमारियां हैं, और बीमारी की वजह से हलाकतें 50% से ज़्यादा थीं। मवेशियों को बाकायदगी से हिफाजती टीके लगाने की मुहिम से बहुत से मवेशियों को बचाया जा सकता है, जिससे मकामी आबादियों को फ़ायदा पहुंचेगा। इस तरह की मुहिम से यकीनन फौरी नतीजा निकलेगा।
ہمیں آج تک نہیں پتہ تھا کہ ہمارے مال مویشی کیوں مرتے ہیں. ہم بس یہی ہمیں غلط فہمی تھی کہ کامن لیپرڈ کی وجہ سے جو ہے یہ مال مویشی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن آج ہمیں پتہ چلا کہ ان کی اپنی مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ ویکسینیشن نہ کروانے کی وجہ سے مال مویشی کو ختم کر دیتی ہیں. اگر ہم اس مسئلے کا دیر پا حل چاہتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ گلدار کیسی زندگی گزارتا ہے. ریڈیو ٹریکنگ گلدار کی حرکات کو جاننے کا واحد حل ریڈیائی رابطہ ہے. اس کو ریڈیائی پٹا لگانے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ اس وقت جانور کہاں ہے اور کہاں تھا. کچھ عرصے بعد اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جانور کہاں جائے گا، بلکہ کس جانور کا شکار کر رہا ہے. اس کا حل ایک ریڈیائی پٹا ہے جو تحقیق کرنے والوں کو گلدار کی موجودگی کی جگہ کے بارے میں بتاتا ہے. مقامی دیہاتوں اور وہاں پر رکھے گئے مویشیوں کے متعلق ایک خاکہ بنایا گیا. اب اگلا مرحلہ ان گلداروں میں سے ایک کو پکڑنا اور ریڈیائی پٹا لگانا ہے. اگر گلدار پکڑا گیا تو یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا گلدار ہوگا جس کو ریڈیائی پٹا لگایا گیا ہو. تحقیق کرنے والوں نے گلدار کو جھانسا دے کر پکڑنے کے لیے اس پہاڑی پر پنجرا لگایا جہاں گلدار کے آنے کی نشاندہی کی گئی تھی. پنجرے کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ماحول سے بالکل ملتا جلتا ہو تاکہ گلدار کو محسوس نہ ہو کہ وہاں پنجرا لگایا گیا ہے. جب پنجرا لگا دیا گیا تو اس کے کام کرنے کے عمل کو دیکھا گیا کہ یہ صحیح کام کرتا ہے. گلدار کو راغب کرنے کے لیے پنجرے کے دوسرے محفوظ حصے میں ایک بکری کو باندھا گیا تاکہ گلدار اس کی بو سونگھتے ہوئے پنجرے میں آ جائے. جب آپ اصل میں جانور کو پکڑنے کے لیے پنجرا لگاتے ہیں تو اس سارے عمل کی نہایت اچھے طریقے سے منصوبہ بندی کی جاتی ہے تاکہ جانور کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے اور وہ زخمی بھی نہ ہو. پنجرا لگا دیا گیا. ٹیمیں اپنی اپنی محفوظ جگہ پر پہنچ چکی ہیں اور اب وقت ہے انتظار کا. جب گلدار پنجرے میں پکڑا جاتا ہے